फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी लोग बहुत बिज़ी हैं उसकी तैयारी में। तो ये सीरीज़ भी इसी रिलेशन में डाली गई है। इसमें हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको स्टडी करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इससे हमारा सीटेट का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हमें पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सीरीज़ में ले गए हैं सीटेट 2019 का दिसंबर का पेपर 1। इसी का हम पार्ट 1 देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहेलबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर, द सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, थर्ड है, during classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of gender bias. First है, which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? तो फ्रेंड्स, फोर्थ का आंसर होगा आपका फर्स्ट, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस्ड। नेक्स्ट है, fifth, which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? तो फिर फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा लेव बायोगोट्स्की। सेकंड ऑप्शन आंसर है आपका। सिक्स है, while working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky, by by Vygotsky। इसको क्या कहेंगे हम? ये आ जाएगा आपका प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है, giving cues to children and offering support as and when needed is an example of। सेवेंथ का आपका आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, which of the following behaviors characterized the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? तो एट्थ का आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट है, नाइन्थ है, which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा स्कीमास। नेक्स्ट है, टेंथ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। तो टेंथ का आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन होगा आपका आंसर, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स। टेंथ है, which of the following statements about intelligence is correct? तो फ्रेंड्स, 11th का आपका आंसर होगा, फोर्थ होगा, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। 12th है, Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solution, which is displaying characteristics of। 12th का हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्रिएटिव थिंकर। नेक्स्ट है, 13 है क्वेश्चन आपका,
In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should 13 का आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन रिफ्लेक्ट on her own teaching and find ways to improve students involvement. 14 का है in an inclusive classroom a teacher 14 का आपका आंसर होगा should actively prepare individualized education plans. The primary characteristics of children with dyslexia includes 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड inability to read fluently. Next है 16th the concept of inclusive education and advocated in the Right to Education Act 2009 is based on 16 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन a right based humanistic perspective. 17th क्वेश्चन है in the constructivist framework learning is primarily 17th का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ focused on the process of meaning making. नेक्स्ट है naive theories that children construct about various phenomena. 18th का है आपका फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर should be challenged by presenting counter evidence and examples. 19th है child centered pedagogy promotes 19th का आपका होगा ऑप्शन सेकंड गिविंग primacy to children's experiences. Next है emotion and cognition are 20th का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन interwoven with each other. 21st का हो जाएगा आपका which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective. तो 21st का हो जाएगा फोर्थ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट. नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स. 22 का हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका आंसर इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप इससे बेनिफिट उठाएं और इससे सीखें. ट्वेंटी थर्ड है repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. 23rd का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन होगा आंसर इसका decreases children's natural interest and curiosity involved in learning. 24th है which of the following practices promote meaningful learning. तो 24th का होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन. तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा आपका सेकंड एंड थर्ड. और फिफ्थ है हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन. तो 25th का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज for exploration and discussion. Next है 25th a primary school teacher can encourage children to become effective problem solvers by 26 का हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same. 27th है आपका In which of the following periods does physical growth and development occur at a rapid pace? तो 27 का आपका हो जाएगा फर्स्ट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड.
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप स्टडी करते रहिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता लग जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी इन्हीं के बेस पे अदर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इससे आपको बेनिफिट भी काफ़ी मिलेगा, इसलिए इनको बार बार स्टडी करते रहिएगा। 28 का है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो 28 का है आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। 29th है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज। 29th का है फोर्थ, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे मैंने वीडियो में कुछ गलत बताया है या फिर कोई आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आ सकती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो फ्रेंड्स, ये है थर्ड, स्कूल एंड मीडिया। फ्रेंड, हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट होता है वो फैमिली होती है और सेकंड जो है वो स्कूल होता है।